ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੇ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਓ ਆਪਣੀ ਲਹੈ ਰਹਾਉ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਓ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਿਸ਼ਰ ਤਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਂਦ ਤੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਜੇਵਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਗਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਨੀਅਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਾਈ,
ज्यों पावक ईंधन नहीं धरापै बिन हर कहाँ अगाई। कहने लगे अग बलदी होवे, मड़ा मूही लकड़ा असीं उस विच सुट दईए ते वो अग कदे रज के अपने आप नहीं बुझदी, सगों उन्नी बलदी है जिन्ना असीं उहदे विच होर लकड़ा सुटदे जांदे हैं। ताईं महाराज ने बाणी दे विच आख्या, कहण लगे जिहड़ी अंदर है ना तृष्णा दी अग, नीयत दी भुख जिन्हों आपां कह सकते हैं सौखे शब्दां च, वो कदे तृप्त नहीं होंदी पदार्थ नाल, दौलत नाल, वस्तुआं नाल, वो सगों वधदी जाती है। इसे करके महाराज ने बाणी च आख्या, तृष्णा बिरले ही की बुझी है, अनक जोरे लाख करोरे मन ना होरे, परै परै ही को लुझी है। महाराज कहते होर परे सहस कटे, लख को उठ धावै, तृप्त न आवै, माया पाछै पावै, अनक भोग विख्या के करे, न तृप्त आवै, खप खप मरै। पर हल की है? ये बीमारी तो है, ये पदार्थ नाल ये नीयत का जिहड़ा खूह है भरिया नहीं जा सकता, पर इसदा हल की? महाराज कहते बिना संतोख नहीं कोऊ राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब खाजे। एक सबर ते सिदक दा गुण ही है, संतोख दा गुण ही है जिहड़ा जीवन च आ जाए ते तृष्णा दा खूह जिहड़ा है इहनूं भर दिंदा है। नहीं ते पदार्थ इहनूं भर नहीं सकदा। पदार्थ दे वस दा रोग नहीं है कि ये इस नीयत दे खोट नूं, नीयत दी भुख नूं दूर कर सके, इहदे चों बंदा रज सके, तृप्त हो सके, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हुण ये तां है एक पेट दी भुख है, शरीर दी भुख है, शरीर दा रजेवा है, एक नीयत दी भुख है, नीयत दा रजेवा है। पर नाल सतगुरु जी नींद दा ते जागण दा भी कंसैप्ट विचार बाणी विच दृढ़ करा रहे हैं। शरीर नूं लोड़ है नींद दी, ये सौंदा है, आराम चाहिए, इसनूं अपनी एनर्जी दोबारा अपने अंदर पैदा करने वास्ते लोड़ है शरीर की। पर कितना क सौवेगा मनुख, कितना अखीर जागदा है शरीरक तौर पर। पर महाराज ने जिस नींद की बात अज के पावन शब्द विच कीती है ना, शरीर की नहीं, वो मन की है, मानसिक नींद है। वो टुट जाए तो जीवन जीवन का आनंद आ जाता है, ना टुटे तो बंदा सारी जिंदगी नींद विच गुजारता है। कईयां दी नहीं भी टुटदी, विरले ने जिहड़े अपनी इस नींद तो खुलासी पाउंदे ने। एक शब्द मैं आप जी के सामने रखना है ताकि सानू समझ आए भी किवें जिहड़ा जागदा है, जिहड़ा उठदा है, वही भगत सदाउण दा हकदार बनदा है, वही गुरमुख बनदा है जिहड़ा उठ पैंदा है। शब्द धन गुरु अर्जन साहब जी का है, मैं संखेप विच उहदा जिक्र कर जाना है। जिथे जिथे भी भगत साहिबाना की बाणी विच गुरु साहिबाना के शब्द आए जां सलोक आए, उहदा भाव ये सी भी कुछ ऐसे विषय सन जिन्होंने महाराज होर समझाउणा चाहुंदे सन डिटेल दे विच, ते महाराज ने अपना शब्द उस पहले शब्द नाल जां अपना सलोक उस पहले भगत साहिबाना के सलोकां नाल दर्ज किया है, ताकि गल व्याख्या दे विच आए ते लोकां नूं समझ आ जाए, कोई उलझन ना रह जाए। शब्द है भगत धन्ना जी का पहला, उस शब्द दे विच धन्ना जी ने, क्योंकि भुलेखा असीं पाया है कि भगत धन्ना जी नूं पत्थर पूजिया ते उहदे चों रब लभे। भाई गुरदास जी की पौड़ी के बड़े गलत अर्थ असीं कीते ने। अर्थ सही ना होए किसी चीज़ का भी बड़ी वड्डी मुसीबत है, मुआफ करना। भावें कोई धर्म ग्रंथ ही होवे ना, धर्म ग्रंथ का भी अर्थ का अनर्थ कर देवे कोई, तो सुनने वाला गलत गल अपने मन च वसा के सारी जिंदगी भुलेखा ढोंदा रहिंदा है। महाराज ने बाणी च एक बड़ी प्यारी बात आखी है, मनो जे अंधे कूप कहिया बिरद न जाननी, मन अंधा ऊंधा कमल दिसन खरे करूप, एक कह जानन कहिया बुझन ते नर सुर स्वरूप। हजूर आखदे क्या जान, आखना जानते हैं गल किवें कीती जाए, समझते हैं भी गल का कोई गलत मतलब ना किसी के दिमाग में वस जाए, ध्यान रखते हैं। जिवें रसोई में सवाणी पदार्थ तैयार करती है, तो पदार्थ तैयार करदे हो ध्यान रखती है भी लूण मिर्च मसाला कुछ भी वध घट ना हो जाए, भी जिन्ना खाना है साडे परिवार के जीवन ने उन्ना क चाहिए। हुण जे भला चाह दे विच मिर्चां पा देवे ते दाल दे विच खंड सुट देवे, वो खाना परिवार का कोई मैंबर पसंद करेगा, चंगा नहीं लगेगा, टेस्ट बदल जाना। इस करके टेस्ट का भी ख्याल रखती, तो यह भी ख्याल रखती है भी किहड़ी चीज़ किहड़े मनुख लई साडे परिवार के जी लई जरूरी है। जिहदा कैस्ट्रोल वध है उन्होंने घ्यो नहीं पाउणा,
जिन्हों शुगर है उन्होंने जिहड़ी चाह है वो फिक्की देनी है। ये ध्यान उस रसोई दे विच रह के रखना है, ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भोजन उन्हें देना है वो किसी का नुकसान भी ना होवे ते उन्हें टेस्टी भी लगे, स्वाद भी लगे। हुण कहण दे अंदाज विच भी बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। गुरु नानक महाराज ने जदों हरिद्वार गए, सूरज वाल पिट करके पुठे पासे पानी देना शुरू कर। महाराज जानते सन भी ये जिन्ने भी सूरज को पानी देने वाले ने सब बीमार ने। हुण बीमार नूं बीमार आखोगे तो गुस्सा करेगा, गुस्सा करता। तुसीं पागल नूं लख आखोगे तू पागल, मनण लई तैयार नहीं। वो कहता मैं पागल नहीं, बाकी सारा जमाना पागलों का है। हुण हैरानी की बात यह है, गुरु नानक महाराज जानते सन कि हो सब गलत रहा, पिठ कर ली उस पासे, पुठे पासे पानी देना शुरू किया। साखी आप जी ने बड़ी बात सुनी है, भेत ही है एक साखी का। साखी विचों भेत समझना है भी कई बार सीधी गल उन्ना असर नहीं करती जिन्नी गल समझाउण दे तरीके नाल कीती जाए, अगले दे मन विच वस जाए भी गल तां सही है। जिन्ना चिर अगला महसूस नहीं करता आखी गल का मतलब की है। तो गुरु नानक का कहण दा अंदाज कितना प्यारा है। उस पासे वाल पिठ कर ली। उन्होंने सोचा भी खौरे इन्हों पता नहीं कि सूरज वाल पानी देईदा, ये उल्टे पासे पानी दे रहे हैं, पिठ कर ली है सूरज वाल। उन्होंने सोचा भी भुलेखा लग गया। इस तीर्थ यात्री हसन लग पाए, मजाक उड़ाउण लग पाए। गुरु नानक महाराज नूं आखदे ने जी पानी इधर नहीं इधर देईदा, तुसीं पुठे पासे पानी दे रहे हो। महाराज कहण लगे भी इधर पानी कादे लई देईदा? कहण लगे इधर पितर लोक हुंदा है, सूरज तो अगे पितर लोक आउंदा है, पितर लोक नूं पानी देईदा अपने मरे हुए बजुर्गों के निमित्त। गुरु नानक महाराज कहण लगे मैं तो पितरां नूं पानी नहीं दे रहा, फिर मैं इधर पानी क्यों देवां? कहण लगे किहनूं दे रहे हो? कहण लगे जी मेरे तो अपने पिंड विच तलवंडी विच खेत ने, मैं तो उन्होंने पानी दे रहा भी एडी दूर मेरा हुण छेती जाना औखा है, मैं सोचा इत्थे पानी दे देने। वो फिर हसे, कहण लगे एडी दूर तेरा पानी तेरे खेतों में किवें पहुंच जाएगा? महाराज कहण लगे भी इथों अरबां मील आपां नहीं जानते कितनी दूर है सूरज इस धरती तो, उदों भी अगे पितर लोग जो उत्थे पानी पहुंच सकता है, तो तलवंडी मेरे खेतों में मेरी फसल में पानी इथों दिता क्यों नहीं पहुंच सकता? सूरज नालों तां नेड़े है। हुण जिन्हां दे मन विच गल वसनी सी वस गई, गल समझ आ गई। एक कह जाणन एक आखना जाणदे ने, ते एक उहने कहया बुझन, जिहड़े कई गल दा भाव बुझ लैंदे ने, मतलब समझ लैंदे ने। मतलब कि गुरु नानक महाराज ने ये साखी इतिहास विच है। भेद साखी हमेशा भेद देती है। उन्होंने तुसीं बाहरे रूप नूं फड़ के बह जाओगे, कोई बंदा फ्रेम फड़ लवे, फ्रेम दे विच फोटो कोई ना होवे, उहदा की फायदा? फ्रेम जिहड़ा है वो सारा कुछ नहीं, फ्रेम फोटो वास्ते होता है, तस्वीर वास्ते होता है। तो जे तस्वीर गायब कर दी जाए तो कला फ्रेम ही रहन दिता जाए, किसी का वेखण नूं जी नहीं करेगा। पर असीं वो लोग हाँ जिहड़े फ्रेम नूं ज़्यादा प्यार करते हैं, फोटो नूं छड्ड दिंदे हैं। असल फोटो होंदी है साखी दे विच, असल फोटो होंदी है सिक्ख्या, बाकी ते सारा फ्रेम होंदा है दस्सण वास्ते। गुरु नानक महाराज आखदे ने भाई लहणा जी नूं भी ये मुर्दा खाना है, साखी तुसां भी सुनी है। वो भाई लहणा जी हाथ जोड़ते कहण लगे महाराज हुक्म करो, मैं सिर वालों शुरू करा कि पैरों वालों शुरू करा? हुण एक भेत है जिहड़ा गुरु नानक महाराज समझाउणा चाहुंदे ने, उस भेद नूं भाई लहणे ने समझ लिया है। बस जदों इउं कह लो भी गुरु की कई गल सिख की समझ में आ जाए ज्यों दी त्यों, समझ लो भी सिख गुरु के बचन नूं समझण दे समर्थ हो गया। इस बुद्धि का लैवल बन गया, इहदा पद्धर बन गया भी गुरु की आखी गल इहदे हिरदे विच समा जाएगी। क्योंकि गुरु की गल सुनते रहांगे, पढ़ते रहांगे। भाई गुरदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी अपने कवितां दे विच, लिखते ने भवरा रोज आउंदा है फुल ते बैठदा है, उहदी सुगंधी नूं माणदा है, रोज चलिया जाए। एक दिन ऐसा आउंदा है उहदे जीवन विच जदों वो फुल की सुगंधी नूं, उहदे रस नूं, मकरंद नूं माणदा हुंदा, उहदे उत्ते बैठा अपना आपा भुल जांदा है। सूरज अस्त हो जाता है, फुल अपनियां पंखड़ियां बंद कर लैंदा है, ते वो भवरा अपना प्यार तोड़ निभा जाता है फुल दे नाल। एक वक्त ऐसा होता है। ये उदाहरण उन्होंने भला क्यों दी है? ये उदाहरण इस करके दी है भी सिख रोज बाणी पढ़े, संगत करे,
वो जदों प्रैक्टिस करेगा ना गुरु की बाणी के गुणों की, एक समा ऐसा आएगा भी जदों गुरु में लीन होगा, आत्मक तौर पर इन्ना समर्थ बन जाएगा वो भी गुरु की कई गल उहदे हिरदे विच इवें रिझदी जाएगी, सिमदी वसदी जाएगी, थां पा लेगी। जिवें वरखा रुत दे विच जमीन दे विच झड़ी लगी होवे ते पानी दीयां बूंदां जमीन च रिझदियां जांदियां ने, इवें गुरु का वचन उहदे हिरदे विच वसदा जाए। पर यह तां होना है ना जे असीं बाणी आप पढ़ांगे जां सुणांगे, बाणी नाल थोड़ा बहुत स्नेह ते प्यार बनावांगे। ते जे किते आउणा शमाई है, घर च गुटका भी पोथी भी कोई नहीं, बाणी पढ़दी भी कदे नहीं, ते करवा लैनी है, तो फिर तां इह गल नहीं बाणी जिहड़ी भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी च लिखी है, रचना च लिखी है कि भवरा एक दिन ऐसा आउंदा, रोज रस पींदा, एक दिन ऐसा आउंदा जदों अपना आपा उस फुल के हवाले कर दिंदा, लीन हो जाता। ताइयों गुरबाणी विच भवरे दी ते फुल दे प्यार की उदाहरण वरती गई है। जितने भी कवि जन हैं उदाहरण वरत, जिथे प्यार का दृष्टांत देना हो, उदाहरण देनी हो, उत्थे ये उदाहरण वरतते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उहदे जीवन विचों कोई रास, कोई स्वाद नजर आया, वो तो कोई प्रेरणा पैदा हुई है। पर यह तां वापरना ना जे असीं बाणी दे नाल कोई लगाव, कोई नेड़ता, कोई प्यार बनाउण दी कोशिश करांगे, कोई सांझ बनाउण दी कोशिश करांगे। साडी तां उमर लंघ जांदी है गुरु प्यार वालिओ, असीं सारी उम्र दे विच इह नहीं वेखिया हुंदा। कई साडे गुर भाई ऐसे होणगे, मातावां बाबे ऐसे होणगे जिन्हां ने अजे तक गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया रहण का भी आनंद नहीं लिया। अंदाजा तुसीं आप ला लैणा, अजे तक गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया नहीं बैठे, सारी उम्र लंघ गई। होर बाकी बड़े तजर्बे ने उन्होंने को, पर एक असल तजर्बा जो जीवन का सी ना, उन्होंने नहीं हंडाया। उम्र गुजर गई सारी, बाकी वो गिणती कराउण गया, भी कीता, आ भी कीता, आ भी करन वाला सी, आ भी करन वाला सी। पर जे उन्होंने पुछो भी कदे बाणी का पाठ गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बह के कीता, नहीं। कदे अपने पुरखियां के इतिहास की कोई गल पढ़ी है? नहीं। कदे बाणी नूं आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी नूं अर्थां सहित जां किते वैसे ही सहज पाठ जीवन में एक अद्धा कीता होवे ना। हुण आप अंदाजा लाओ कित्थों बन जाए वो सुभाव जिहदी गल भाई गुरदास जी कर रहे, वो तो उसे दे जीवन में ही ढुकनी है ना गल, जिहड़ा बाणी नाल मन की सुरत की नेड़ता बनाउण दा यतन करेगा। खैर जदों गुरु की कही हुई गल सिख की पकड़ में आ जाए, सुरत में वस जाए, समझ लो भी नेड़ता पूर्ण हो गई, नेड़ता का लाभ होना शुरू हो गया। अपना कोई मित्र, कोई स्नेही होवे, सानू पता होंदा कि उहदियां आदतां की ने, उन्हें घर आउणा होवे, असीं उहो जिहा भोजन बनाउने, सानू पता है कि उन्हें आ चीज़ खानी, आ नहीं खानी, उन्होंने इस रंग के कपड़े पसंद ने, आ रंग पसंद नहीं, उन्होंने इवें बैठना पसंद है, इवें बैठना पसंद नहीं। सानू दी हर एक आदत का डूंगा ज्ञान हो जाता है। डूंगा क्यों? क्योंकि नेड़ता है, सांझ बड़ी डूंगी, सांझ का करके सानू उहदी आदत, उहदे सुभाव, उहदे गुणां का ज्ञान हो गया। इस तरह जो गुरु नाल नेड़ता बनती है, तो नेड़ता का मतलब ही ये होता है भी सानू समझ आ जाती भी गुरु का गुण की है, गुरु का सुभाव की है, गुरु च खूबी की है, गुरु च क्वालिटी की है। जे नहीं समझ आई, इसका मतलब नेड़ता नहीं है जी, अजे नेड़ता नहीं बनी। नेड़ता ने तो दसना है, सुभाव के नाल सांझ पवा देनी है साडी। धन गुरु नानक महाराज आखते भी मुर्दा खाना, गल उन्होंने भी बड़ी पते दी है, गल समझण वाले ने समझ लई, असीं फ्रेम नूं फड़ के बैठे हैं। समझण दी बात यह सी, गुरु नानक महाराज ये दसना चाहते सन, क्योंकि जिम्मेवारी देनी है ना भाई लहणा जी ने, जिम्मेवारी ये देनी है गुरता गद्दी दी, ते समझा रहे हैं कि संसार विच मुर्दे हानी छाई है, गुरु का करतब है, गुरु का कर्म है, गुरमत का ये आशा है, मनशा है, गुरमत का मकसद है कि इस मुर्दे हानी नूं खाना है ते जिंदा दिली संसार के जीवन अंदर पैदा करना। भाव बड़ा डूंगा है, बहुत अर्थ रखता है। इसे नूं आख्या बाणी दे अंदर, सतगुर मेरा मार जिवाला, सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपाल है। भी गुरु मेरा मारदा जिवाउंदा। मारदा की है? औगणा वालों मार दिंदा सन। उन्होंने आखे ना पहला मरण कबूल, भी मौत कबूल करदा, जीवन देंगा ये बदले। पूछे महाराज मौत कबूल कर लवां की देओगे? कहने लगे जीवन।
कमाल की बात है, पहलों मारते हो फिर जिवाते हो। हजूर ने आख्या मारना जरूरी है, शब्द मरो फिर जीवो सदही, तां फिर मरण ना होई। इस करके सियाणे गुरमुख विद्वाना ने बात लिखी थी, गुरमुख अपने जीवन च केवल एक बार मरता है, एक बार केवल शरीर रूप में। मनमुख अपने जीवन च बार बार मरता है, जमीर करके, आत्मा करके, गुणा वाले पासों सखना रह के। मनमुख मरदा ही रहिंदा है, मरदा है जिउंदा है, मरदा है जिउंदा है। पर जिहड़ा गुरमुख है केवल एक बार शरीरक तौर पर ही मरता है, आत्मक तौर पर सदा जिउंदा है। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग, जीवन मिल गया उसनों, अमृत पिया सतगुर दिया, अवर ना जाना दुआ दिया। अमृत पीवो सदा चेर जीवो, हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कबे ना व्यापै चिंता। भाव वेखो गुरबाणी के किन्ने डूंगे ने। असीं इन्हां कहानियां पा छड्डियां ने, गुरु साहब ने फलाने नूं श्राप दिता, वह मर गया, फिर महाराज ने आख्या भी दो उठ खड़ उठ खलोता। की लाभ होया जी सानूं? जिहड़ी जिंदगी महाराज दे रहा है वो असीं लैण लई तैयार नहीं। जादूगरी दीयां कहानियां सानूं बड़ियां टुंभदियां। जिहड़े जीवन की बात गुरबाणी पा रही है ना, वो जीवन असीं हंडाउणा, सानूं सुना रही है बाणी। असीं फिर धक के उन्होंने कहानियां वाले पासे ले जाने। गुरबाणी इस वेले मौजूदा हालत जो सानू गल दस रही है ना, भी मरे तो असीं भी सारे होए आत्मक तौर पर, असीं भी तो लाशा ही हाँ, जीवंदड़ों मोयो। गुरबाणी ने आखिया ना भी जिउंदा ही मरिया बंदा, मृतक आए अंदर, अंतर ज्ञान ना आयो जित किश सोझी पाए। महाराज कहते अंदर जो गुरु का ज्ञान नहीं वसिया तो मृतक है संसार, संसार मुर्दा है, मरिया होया है, जमीर मर गई है, गुण अंदरों घट गए, मौत ही है जिहड़ी असीं हंडा रहे। आत्मक मौते मरे हो, इनू आख्या आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखणे औखा साचा ना। ये बात समझा रहे ने सतगुरु। मारदा है गुरु, औगणा वालों सानू खत्म करके गुणा वाले पासे जीवन दिंदा है। मार जिवाले, इनू कबीर साहब के शब्दां चों पढ़ो बड़े ध्यान नाल। वो आखदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। संसार डरदा है, भौंके छड्डदे आ, डर आउंदा, लोभ छड्डदे आ, डर आउंदा, किवें गुजारा करांगे। डर ही है ना साडे मन अंदर, जिस मरने ते जग डर। असीं विकारां वल्लों मरना नहीं चाहुंदे। असीं चाहुंदे आ भी दुनिया की लोक लाज भी रह जाए, विकार भी भोगे जाण, कुकर्म भी कीते जाण, पुठे सिद्धे मनमती कर्म भी कर लीए, गुरमत भी हंडा लीए। दोवें चीज़ां असीं पैरेलल इकट्ठियां रख के चलण की कोशिश, ये चतुराई है। ये चतुराई है कि मनमत भी ते गुरमत भी दोवें दोवें नाल निभदियां जाण। सिखां दे विआह हुंदे ने, बच्चे बच्ची का आनंद कारज, रिंग सैरेमनी कर लई, जयमाला पा लई, होर जितने भी इधर उधर के काम पता नहीं कौन दसदा है, ध्यान चेते रखने ही औखे ने। पर क्योंकि विआह च सलाहां देण वाले बड़े होंदे, सलाहां ते अमल करता जाता है परिवार। जिहो जी सलाह मिलती अमल हो रहा, लगातार अमल हो रहा। किसी चाचे ने सलाह दी, चाची ने सलाह दी, जिवें सलाह देई गए करी गए, नक नमूज की बात है, सारिਆਂ की मननी है। मनी सारिਆਂ की गई, जे किसी की नहीं मनी गई तो गुरु रामदास महाराज की नहीं मनी गई, बाकी सारिਆਂ की, भूआ की मन लई, मासी की मन लई, चाचे तायां की मन लई, जिन्हें भी सलाह देण आए सब जी आया आख्या। तो जदों गुरु रामदास महाराज को बैठन लगे, गुरु रामदास महाराज अपना उपदेश देन लगे, सारे एक दूजे वाल कौड़ा कौड़ा वेखण के भी भाई इन्ने स्लो क्यों पढ़दा है चार लावां दा पाठ, ये थोड़ा जिहा तेज नहीं पढ़ सकदा क्योंकि साडे कोल टाइम है नहीं, ये इन्ना हौली हौली क्यों पढ़दा है, ये लां दा पाठ छेती भी कर सकदा सी, 1 मिनट लाया ये 30 सेकंडां विच भी हो सकदा सी। ये साडी साइकी है, सोच है। असीं दुनिया वालों मरना ही नहीं चाहुंदे। गुरु के घर दे विच, गुरमत दे विच जन्म किवें हो गए? जिस मरने ते जग डरै, डर है साडे अंदर। जे असीं रिंग सैरेमनी ना कीती, असीं लोकां च किवें आखांगे भी असीं बड़े पढ़े लिखे ते सियाणे लोक हां। जे असीं ड्रिंक ना कीती ना करवाई, लोग कहणगे किन्ने पछड़े होए, डर है। उंज असीं कहने भी असीं डराकड़ नहीं, डरदे ते बहुत हां दुनिया कोलों,
ਐਵੇਂ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ गल उत्ते असी अपना नक नमूज अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। हर एक कर्म नूं असी अपने स्टेटस नाल जोड़ लैंदे हां। ये साडी बड़ी माड़ी आदत है कि हर चीज़ नूं ना असी अपने स्टेटस नाल जोड़ के बैठ जाते हैं। भी ड्रिंक करना, शराब पीनी, शराब वरताउणी, ये भी स्टेटस है। एवें फजूल के काम जिन्हां दा कोई मतलब नहीं निकलता बंदे दे जीवन लई, वो भी करना साडा स्टेटस है। पर जे असी किसी चीज़ नूं अपनी जिंदगी का स्टेटस नहीं बनाया तो वह गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी के उपदेश, गुरबाणी की साझ, मैं तो कई बार बेनती की है हर थां ते भी उदों तो साडे कोल समा नहीं है। असी 10 मिनट भी बहन वास्ते अपने आप नूं इवें महसूस करते हैं भी जिवें सज़ा लगी होवे। इवें ही हुंदा है ना, क्योंकि विआह तां तुसीं भी वेखदे हुंदे ने। पर मैं ये बेनती कराया करता, जिन्हां कोल गुरु रामदास महाराज की गल सुनने का समा नहीं ना हुंदा, फिर सारी जिंदगी उन्होंने समा कढ़ना पैंदा है। जोतिषियां कोलों अपने गृहस्थ मार्ग के नुस्खे पुछण वास्ते, अपने विगड़े ग्रह ठीक कराउण वास्ते, बाबियां कोलों पुछना पवाउण वास्ते भी साडा गृहस्थी जीवन किवें सुखी रह सकदा, फिर उन्होंने सारी जिंदगी समा कढ़ना पैंदा है। बाणी का एक वचन है, जिसै दिखाला वाटड़ी तिसै भुलावै कौन, जिसै भुलाई बंद सिर तिसै दिखावै कौन। जिहड़ा गुरु तो खुंझ जाए ना, महाराज गुरु अमरदास सच्चे पातशाह ने आख्या मुकत ना पावै होर थैं कोई, पुछो विवेकियां जाए। जिन्हां सच वल पिठ कीती, गुरु दे वचन का ध्यान नहीं कीता, वो सारी दुनिया च भटकणगे, पर खैर कितों नहीं, झोली कितों नहीं भरेगी। अशांति, भटकना, कलेश, दुख, सहम, ये सब नाल चलेगा, क्योंकि गुरु वाला पेट करके ना कोई सुखी हो सके ना कोई हो सकता है। ये गुरु महाराज का कढ़िया होया तत्त है। बाणी दे बाणी तजर्बा ही है ना, तत्त है गुरमुख बाणी। सतगुरु महाराज बाणी दे विच आखदे मैं तत्त कढ़िया, पुछो विवेकियां जाए। जे मेरी गल ते इतबार नहीं, सियाणे जिहड़े भले लोग ने, जिहड़े सच झूठ का फर्क समझे, उन्होंने पुछ लो, पुछो विवेकियां जाए। फिर मुकत पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो वेड़ सतगुर, मुकत ना पाए। फैसला दे देता है, बड़े प्यार नाल गल समझा दी। जे मेरे ते यकीन ना होवे तां विवेकशील पुरखां नूं पुछ लो, उन्होंने पुछो जिहड़े धक्के खा के वापस मुड़ आए ने, उन्होंने पुछ लो कि तुहाडा जीवन किवें चल रहा है। कि तुसां तां 7 दिन ला के विआह कीता है, कदे किते रिसैप्शन, कदे किते पार्टी, हुण धक्के कातों खांदे हो? पुछो उन्होंने, नहीं पुछते ना असी। उन्होंने पुछो जरूर भी इन्ना समा, इन्ना पैसा, इन्ना सारा कुछ, बड़े सज धज नाल तुसां विआह कीता, की कारण है, इन्नी मुश्किल क्यों आ गई? तुहानूं तां खुशी बड़ी सी, 7 दिन तुसां खुशी कीती है, बड़ा पैसा लाया, हुण की हो गया? पुछो उन्होंने। वो कहेंगे जी आ प्रॉब्लम है, आ प्रॉब्लम है, आ भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गणाउणगे उन्हों बहुत लंबियां चौड़ियां। सतगुरु के प्यार वाले लोक लाज वालों उपर उठना बड़ा औखा लगता है, डर लगता है। लोग की आखणगे, रिश्तेदार की आखणगे, पर जदों साडे घर च प्रॉब्लम होंदी, कोई रिश्तेदार उदों फेरी मारन भी नहीं आउंदा कि साडा रिश्तेदार औखा है, जिन्हां वास्ते असीं जीव रहे हैं। किन्ना चंगा होवे जे असीं गुरु दी रज़ा, गुरु दे प्यार विच जीना शुरू करिए, जीवन का आनंद आए। सतगुरु आखते ने जिस मरना ते जग डरै, मेरा मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। परम आनंद मिलता है जे असी लोक लाज वालों मर के, अवगुणा वालों, विकारां वालों मर के गुरु वाल जीवन धारण कर लईए। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तां फिर मरण ना होए। ये जिक्र बाणी विच महाराज ने कीता। तो यह है एक कह जानन, कहया बुझन ते न सुगड़ स्वरूप। अगे एक बात है, एक ना नाद ना वेद, ना गी रस, रस कस ना जनंत, एक ना सिद्ध ना बुद्ध, ना अकल सर अखर का प्यो न लहन। अखर का भाव नहीं समझते, शब्द का अर्थ नहीं पता, ज्ञान समझण दी बुद्ध नहीं है। उन्हां लई काला अखर भैंस बराबर होंदा है। ज्ञान भी समझना पैंदा है ना जी। ज्ञान जे समझिया ना जाए, ज्ञान जे कमाया ना जाए, तो ज्ञान तो जीवन के अंदर खराबी पैदा कर देता। हंकार हो गया भी मैं बड़ी वड्डी चीज़ हाँ।
जे ज्ञान नूं सही तकनीक नाल समझिया ना जाए, भुलेखा मन विच रह जाता, उलझण वस जाती है मन के अंदर। इस करके महाराज ने आखे एक ऐसे ने जिन्होंने ना एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल, सारा खरका प्यो ना लहन, उन्होंने कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा ही वापरिया। भाई गुरदास जी दियां वारां नूं, गुरबाणी के अर्थां नूं समझण विच बड़ा वड्डा अंतर विरोध पैदा हो गया। भुलेखे ही प्रचारे गए, भुलेखे ही असीं सुरत विच टिका लए। भगत जी लिखते हैं आप अपनी बाणी च, धन्नै धन पाया धरणी धर, मिल जन संत समानिया। कि धन्ने ने अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम का धन पा लिया। कित्थों पाया? मिल जन संत समानिया, सत संगत विच बह के, गुरमुखां की संगत विच बह के। हुण इस गल नूं व्याख्या देनी है गुरु अर्जन साहब, क्योंकि संपादना करवा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी की, पोथी साहब के रूप में। भाई गुरदास जी लिखारी ने जदों यह शब्द उन्होंने सामने आया, उन्होंने वेख्या भी भगत धन्ना जी बारे कोई भरम, कोई भुलेखा खड़ा कर रहा है। ये भुलेखा किवें दूर किया जाए? उन्होंने इस शब्द के अगे भी मिल जन संत समानिया का भाव की है। कोई संतां दा बाद विच अर्थ यही ना कढ़ लवे भी वो फलाने संतां दे चेले सन, टिमकाणे साधु कोल जांदे सन। ऐसियां कहानियां जुड़दियां ने। गुरु नानक महाराज आके उन्हां इन्हां साधां दे पुजारी उन्हां साधां कोल जांदे सन। एक संतरेण नाम की वखरी मंडली बन गई। कोई ये भुलेखा ना खड़ा कर दे भी भगत धन्ना जी किसी ऐसे वैसे साध संत दे चेले सन। एक्सप्लेन करना, व्याख्या कर देती। महला पंजवा। गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को शीपरो होयो लाखीना, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा भयो, गुनी गहीरा रविदास ढोवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग, हर दर्शन पाया सैन नाई, बुद्ध कारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गने। मिल जन संत समानिया। इन्हां गुरमुखां दी, इन्हां रब दे प्यारियां दी संगत विचों ये धन खटिया है। गुरु अर्जन साहब ने व्याख्या कर, कितना सौखा हो गया साडे लिए। भगत धन्ना जी दे वाक नूं समझना गुरु अर्जन साहब दे शब्द विचों कितना सुखला, कितना स्पष्ट हो गया। फिर अगे लिखिया, ये बिद सुन काटरो उठ भगती लगा। ये बिद सुन के जाट। मैं एक उदाहरण देना, मान लवो भी 25 साल की उम्र होवे भगत धन्ना जी की, जदों उन्होंने उन्होंने गुरमुखां की बात उन्होंने संगत पाई तो उन्होंने समझ आई। ये विद उपर दसिया भगत नामदेव साहब बारे, भगत सैन जी बारे, भगत कबीर जी बारे, भगत रविदास जी बारे, इन्हों बारे ऊपर जिक्र किया। ये विद सुन के जाटरो उठ। कि वो 25 साल सुते रहे? जे 30 साल की उम्र में उन्होंने पता लगे है भी आ उपरले रब के बंदे इवें दा जीवन जीते हैं, उन्होंने उन्होंने संगत उन्होंने नेड़ता पाई, उन्होंने शोभा सुनी, उन्होंने बाणी नाल सांझ बनाई। ये बिद सुन के जाटरो। वो उठना की सी भला? ये तो पॉसीबल नहीं ना भी 25 साल बंदा जन्म तो लेके सुता ही रहा, 30 साल सुता ही रहा। पर सुते तो रहे, पर की शरीरक तौर पर 25 साल कोई सौ सकता? 30 साल सौ सकता? नहीं, ये सौना सी मानसिक आत्मा। वो उठना की सी? जाग आ गई, सुचेत हो गया मन, जागृति आ गई। जिन्हों असीं पढ़ते हैं जागृति आ गई जीवन अंदर, जाग पिया बंदा। जिन्हों महाराज बाणी च कह रहे हैं जाग लेहो रे मना, जाग लेहो कहां गाफल सोया, तू गाफल हो के सुता पे। जिहड़ी नींद की गल अज धन गुरु अर्जन साहब अपने मुबारक शब्द विच कह रहे हैं। दाता सतगुरु जी आखते ने ये बिद सुन के जाटरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वट पाका। व्याख्या तो बाणी ने आप ही की है। तो मैं जिहड़ा वचन तुहाडे नाल साझा करना सी वो ये सी कि उठण दा भाव है जाग जाना। ते ये जागना किहड़ा सी जिहड़ा भगत नामदेव साहब ने हंडाया है, जिहड़ी नींद छड़ दित्ती है, वो जागना सी मानसिक आत्मक तौर पर जाग पैना, सुचेत हो जाना, अंदरों जागृति आ जाना, अवेयरनैस आ जाना। ये है जागना। बाकी इस हिसाब नाल जे असीं सोचीए तो असीं किवें सुते होए हैं। धन गुरु अर्जन साहब कहते ने नैनो नींद पर दृष्ट विकार, अखां भी सुतियां ने, पर दृष्ट पराई दृष्टि, पराए ढंग नाल दृष्टि साडी है, देखण दा नज़रिए नूं दृष्टि कहते।
वंड पैदा करने वाली दृष्टि, विकारी दृष्टि, पराया रूप तकते हैं, वैर विरोध नाल वेखते हैं, ईरखा की भावना नाल वेखते हैं, ऊच नीच अमीर गरीब की वंड करके वेखते हैं। यह है विकारी दृष्टि। तो जे ऐसी दृष्टि है, इस ढंग नाल वेख रहे हैं असीं, तो गुरु अर्जन साहब महाराज कहते अखां दे विच नींद है, अखां सुतियां ने, अखां सुतियां ने, भावें अखां खुलियां होण, पर जे वेखण का तरीका ऐसा विकारी है तो गुरु अर्जन साहब नहीं मानते भी असीं जागदे हैं। हजूर तो आखदे सी सुते हुए नैनो नींद पर दृष्ट विकार। अगे जिक्र आया श्रवण, कानां नूं कहंदे कन, श्रवण सोए, कन भी सुते हुए, सुन निंद विचार, निंदा दियां विचारां सुन सुन के। निंदा का भाव समझना है बाणी चों भी फुल नूं फुल आखना उसकी खुशामद करना नहीं, तो कंडे नूं कंडा आखना उसकी निंदा करना नहीं। जदों फुल नूं कोई कंडा आके ये की है निंदा, तो जे कंडे नूं कोई फुल आके खुशामद चापलूसी, किसे च औगण है उन्होंने चेता कराना, ये औगण दूर कर ले, भले का काम है। ये उवें ही है जिवें डॉक्टर सानूं चैक करता है तो बीमारी दस देता भी आ तुहाडे च बीमारी है, इसदा मतलब ये भी निंदा करता है नहीं, वो तो साडा ध्यान साडी कमी वाल दवाया है ताकि असीं तंदुरुस्त हो सकीए, ठीक हो सकीए। गुरु नानक महाराज ने जदों ये बात आखी बाणी विच, कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नहावे जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बन, ये निंदा की। महाराज ने जोगी की निंदा की है, काजी की निंदा की है, जां ब्राह्मण की निंदा की नहीं। निंदा गुरु कर ही नहीं सकता, गुरु तो सानू रोकता है निंदा करने तो। बाणी ने आख्या निंदा भली किसै की ना, मन मुख मुग्ध कराने तो मूर्ख करते हैं, निंदा मूर्ख करते हैं, सियाणे नहीं करते। गुरु ने निंदा नहीं की किसी की, जिहड़ा औगण वेखिया ना औगण ध्यान दे विच लिआंदा भी एक कमी है, बीमारी है, इहनूं दूर करो, नहीं तो तुहाडा नुकसान करेगी, ये नुकसान करेगी, ध्यान दिवाए। निंदा की है जे भले पुरख नूं, नेक है कोई चंगा काम करता है, जे किसी च गुण है, जान बुझ के उन्होंने गलत कहना भी ये औगण है, गुण नूं औगण आखना ही निंदा है, तो किसी चौगण होवे तो मेरे वर्गा एवं उन्होंने पुल बनी जाए, ये चापलूसी है, यह खुशामद है। सानू अर्थ समझना पएगा गुरु ग्रंथ साहब की बाणी चो भी निंदा का अर्थ की है, खुशामद का अर्थ की है। उस्तत निंदा दो त्यागै, खोजै पाद निर्वाणा, जन नानके खेल कठन है। औखा इस करके है जी, बुरे बांडा पैंदा है। जदों तुसीं किसी के औगण वाल ध्यान दिवाओगे तो बुरे बांडना पएगा। हो सकता है अगला तुहानूं गलत समझे, गलत समझे तुहानूं भी ये गलत कह रहा है, तुहाडे ते दूषण लाए, कई तरह दी गल्लां तुहाडे लई करे, औखा है। उस्तत दा भाव है खुशामद, खुशामद नहीं करनी किसी दी। हुण किहड़ा रह सकदा है जे इत्थे कोई मंत्री संतरी कोई बाबा आ जाए, साडे तेवर बदल जाने ने, भावें गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश ही हो, पर किन्ना है असीं रूटीन विच सुणदे रहीए ना भी असल संत कौन है, बाणी च की लिखिआ है, संगत दा किहो जिहा माहौल होना चाहिए, रहत मर्यादा नूं भावें लख वार पढ़ीए। जदों बंदा बाहरों आ गया उस वेले तुसीं बहुते गुरुद्वारिਆਂ 'ਚ ऐसा हुंदा कोई खास बाबा आ रहा, लोग उहनूं वेखण वास्ते इवें विहार कर रहे हैं भी जिवें हुण तक ते असीं खुंझे ही रहे, शुक्र होया तुसीं आ गए। गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी का ख्याल नहीं रहिंदा, कई तां जकारे छड्डदे ने, उचेचे तौर पर मान सन्मान चादर विछाउणगे, बड़ा कुछ करनगे। यह खुशामद, यह चापलूसी भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज तो वड्डा भी कोई हो सकता है साडे लई। जो भी कोई आ रहा है ना बाहरों, वो संगती रूप च आ रहा है, भावें वो धार्मिक आदमी है, राजनीतिक आदमी है, समाजिक कोई सेवादार है, किसी वड्डी पोस्ट ते है, अमीर है, गरीब है, जो भी इत्थे सब इको जिहे, सब इको जिहे, किसी लई उचेच नहीं, किसी लई वखरापन नहीं, किसी नाल नफरत नहीं, किसी नाल किसी के अगे पिछे फिरन की जरूरत नहीं। इत्थे केवल असीं सारे यही तो भाईचारा पैदा करना है गुरमत ने। पर जिथे ये मैसेज, जितों ये उपदेश मिलना सी, उत्थे ही वखरेवा पैण लग पिया, उत्थे ये हाल हो गया भी एक मनुख नूं दूजे मनुख नालों वखरा करके उचेचा स्थान देने की कोशिश होती है, वडियाया जाता है, सत्कारिया जाता है। सत्कार सबना दा है। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सानू यही दृढ़ कराउंदे ने, निंदा ते उस्तत दा फर्क समझ लईए। जे जीवन विच गल वस गई तो सबना दा इको जिहा मान होएगा। इस करके दुनिया जिहड़ी है गुरु नानक महाराज दी बाणी दे विच
इन्हां दोवां चीज़ां नूं उस्तत ते निंदा का भाव बड़ा डूंगा बयान किया। तो मैं बेनती कर रहा सा गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन भी जन नानक ये खेल कठिन गल बड़ी औखी है। कठिन इस करके नहीं भी ये गल औखी है, कठिन इस करके भी साडा सुभाव इहो जिहा नहीं बनया। जे असीं इहो जिहा सुभाव बना लईए फिर कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई साडे च बाणी च नहीं है, ये समझ लेना। सतगुरु सच्चे पातशाह जी आखदे श्रवण सोए सुन निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे सा। मिठे स्वादले रसां दे लोभ विच रसना सुती हुई है। मिठा करके खाया कौड़ा उपजया। इनू एक तो यह चस्का है भी चापलूसी करा, किसी की निंदा करा, चुगली करा, किसी के बेवजह गुण गावां जां पदार्थों के वध वध रस चस्के स्वाद भोग लवां। ये रसना तू अन्न रस राच रही तेरी प्यास न जाए। ये चस्के ने जबान के चस्के पूरे करने वास्ते दुनिया दुखी होती है, परेशान हो रही है। शरीर का ख्याल नहीं, मन का ख्याल नहीं, जीवन का ख्याल नहीं। लोग अपनी जबान का रस वेख रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशानियां चलते हैं, पर नहीं इस गल का ख्याल नहीं भी चस्का दुखी कर रहा। बाणी विच महाराज ने चस्के वस पै मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश पंच दोख या साथ जामै ताकि के तकास। जिहदी की आस की जाए जिन्हों इन्ने चस्के ने। हजूर आखदे रसना सोई लोभ मीठा सन। मन सोया, मन सुता होया, मन भी नींद विच है। मन सोया माया बिस्मार, माया के स्वाद, माया के आगोश विच, माया च मस्त होया, माया के नशे विच मन भी सुता। हुण अगली गल आखी कह लगे इस गृह में शरीर रूपी घर दे विचों साडे ज्ञान इंद्र ने, अखां ने, कन ने, जबान है, ये सब सुते हुए। शरीर के घर के परिवार के सारे मैंबर सुते। हुण जिहड़ा परिवार सौ जाए गाफल हो के उन्होंने घरे चोरी हो जाए, सुभाविक है ना। जिहड़े अपनियां चीज़ां प्रति अवेयर नहीं होंदे, सुचेत नहीं होंदे, वो हमेशा लुटे जाते हैं। उन्होंने घरां दे विच चोरियां होंदियां, डकैतियां पैंदियां, पर उन्होंने पता नहीं। महाराज ने लिखिया ना बाणी विच, इस देही अंदर पंच चोर वसै काम क्रोध लोभ मोह हंकारा अमृत लुटै मन मुख नहीं बूझै कोई ना सुनै पुकार। जिस घर के सारे जी गाफल हो के सुते, असीं सुते हुए हैं तो लुटे जा रहे हैं ना जी। असी कौमी तौर पर भी लुटे जा रहे हैं, निजी तौर पर भी लुटे जा रहे हैं। साडी नींद ही साडा शराब है, सानू किसी शराब नहीं देता। लोग कहते हैं पता नहीं क्यों साडी मन अंदर कदे खिज आ जाती होवे इस गल नूं लैके, पता नहीं गुरु की की मर्जी है साडे नाल की हो रहा है। गुरु की कोई मर्जी नहीं, गुरु की कोई मर्जी नहीं। करते का एक नेम है। जिहड़े लोग अखां बंद कर लेंदे ने वो हमेशा ठेडे खांदे ने। कुदरत का एक असूल है, जे हनेरे नाल प्यार पाओगे धक्के खाओगे। बड़ा मोटा जिहा असूल है कुदरत का। जहर पीओगे मौत मिलेगी, अमृत पीओगे जीवन मिलेगा। चानण च तुरोगे मंजिल ते पहुंचोगे, सुते रहोगे लुटे जाओगे, जागोगे अवेयर होंगे, सुचेत होवोगे बच जाओगे। गुरु ने जगाया ही है ना, सुचेत ही किया है ना सानू सारे। इतों तक अलामा इकबाल ने यह बात लिखी सी कि सारी हिंद एक ख्वाब विच अज्ञानता की नींद आगोश विच सुती है। उन्हें लिखा गुरु नानक एक मुकम्मल मर्द है जिन्हें जगाया सारे सुपनिया चो बाहर कढ़िया, हकीकत की जिंदगी के दर्शन कराए। हुण देखो जिन्हों ने गुरु नानक महाराज की विचारधारा नेड़े होकर वेख्या पढ़िया, जिन्होंने समझ आई अब जिन्नी भी आई उन्होंने उची उची कूकिया भी देखो गुरु नानक महाराज एक मुकम्मल मर्द ने। वो लिखते हैं फिर आखिर फिर अखीर, इदों पहला भी नज़म के कुछ हिस्से ने कविता के हिस्से ने। अखीर ते लिखते फिर आखिर उठी सदा, सदा का मतलब है आवाज, सदा सदा तो सदा बने आवाज उठी। फिर आखिर उठी सदा तौहीद की। तौहीद का मतलब है एक अल्लाह परस्ती, एक रब दे नाल जुड़ना, एक अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़ना, इनू तौहीद कहते हैं। तौहीद गुरु नानक ने
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇवी देवते, वहमां भरमां, कुदरती शक्तियां, बड़ियां कबलां, रुखां पत्थरां, जीव जंतुआं, बंदियां की पूजा नालों हटा के एक रब नाल जुड़े, इहनूं तौहीद आख्या। फिर आखिर उठी सदा तौहीद की पंजाब से, पंजाब तो फिर आखिर एक सद, एक सुनिया उठिया एक रब नूं मनण दा, तौहीद प्रस्ती दा। हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से, सारी हिंद नूं एक मुकम्मल मर्द ने, कामिल मर्द दा अर्थ मुकम्मल मर्द ने सुपनियां दे विचों बाहर कढ लिया, सच्चाई की जिंदगी वाल प्रेरणा कर दी, सच के दर्शन करवा दिते। हुण जिस गुरु नानक महाराज ने समुची हिंद नूं जगाया होवे ते अज बाबे नानक दा उही सिख सौ जाए, किन्नी नमोशी की बात है जी। अज सिख जिहड़ा दूजियां नूं सुनेह दिंदा भी बच जाओ, जिहदा कर्म सी होगा देना, अज वही आप ही लुटिया जा रहा होवे, ये नमोशी की गल नहीं साडे लई। वो सिख आप ही सौ गया जिहदा गुरु ने ये नियम बनाया भी जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरा, भी आप भी जागे तो सुनिया, जागया होया चौकीदार ही सुनिया दे सकता है ना जी, भी जागते रहो जागते रहो। किसी मुहल्ले ने नवा रखिया से चौकीदार, वो रात को कहे डंडा जमीन ते मारे, नाले आके जागते रहो, सारे बड़े परेशान थी। अजीब बंदा है कि जे असी जागना है तेरी की लोड़ है। सवेर वेले उन्होंने सारे महल्ले के लोग इकट्ठे कर लिया, कहने लगे भी चौकीदार की छुट्टी करो। कहने लगा मेरा कसूर तो दसो। कहते भी कसूर तेरा यह है सारी रात तू जमीन ते डंडा मारता रहे, पहला चौकीदार भी असी रखिया, उसकी कदे आवाज नहीं सी निकली सारी रात, ते तू रात डंडा जमीन ते मारदा रहे, नाल कहंदा रहे जागदे रहो भी जे असी जागना है तो तैनूं तनख्वाह काहदी देनी है, तू जा, जे असी जागना है तो तैनूं काहदे लई रखिया। उन्हें बड़ी प्यारी बात है, कहने लगा मैं नहीं जानता पहला चौकीदार क्यों नहीं सी, कहंदा हो सकता वो भी सौ जाता होवे, जदों तुहाडीआं लाइटां बुझियां वेखदा वो भी सौ जाता होवेगा। पर मेरा ये कहने का भाव ये है जागते रहो भी सौवो जरूर मेरे आसरे ते, भी मैं तुहाडे घर की देख रेख कर रहा मुहल्ले, पर इन्ने भी ना सौ जाए भी 50 बंदे आउण ते मैं आवाज़ मारा तुसीं उठो ही ना, मैं कल्ला तो 50 नाल मत्था नहीं ना ला सकता, भी मैं जदों मुसीबत विच आवाज़ मारा तो तुसीं उठो ही ना, इन्ने भी ना सौ जाए। सौना तुहाडा हक है, तुहाडे रखिया लई मैं खड़ा, पर मैं केवल अलार्म दे सकदा जदों कोई मुसीबत आई 50 बंदे आके टुट के पै गए, तुहानूं ही आउणा पैणा मदद वास्ते, ते सौ जरूर आराम करो, पर इन्ना भी डूंघे ना आराम विच उतर जाओ, सौ इन्ना भी डूंघी नींदे ना जाओ कि मेरी बात आवाज़ सुनने वाला भी कोई ना आवे। कितनी प्यारी गल आखी उन्हें, आराम करना हक है, पर इन्ने भी डूंघे रसां कसां पदार्थां दे चस्कियां विच ना गवाच जाइए। साडा पंजाब दे अंदर वैसे तो असल खालसा राज बाबा बंदा सिंह बहादुर दा कदे उन्होंने पढ़ के वेखी इतिहास में, किन्ना बजुर्गों ने घालना घालियां, मेहनतां मशक्कतां कीतियां, अपने खून के कतरे वहाए, भुख ते गर्मी सर्दी नींदरे जेलां कटियां। पंजाब के अंदर एक राज होंद विच आया, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब की कमान हेठ, ते कदे उस राज दे जाण दा इतिहास पढ़ो। ज्ञानी सोहन सिंह सीतल ने एक किताब लिखी बड़ी प्यारी, सिख राज किवें गया। मैं समझदा हर सिख के घर होनी चाहिए, तुहाडे नाल वापरी होनी है। जिहड़े लोग अपने नाल अपनियां गलतियां नूं नहीं ना पढ़दे पिछलियां नूं, वो अगांह कोई चंगा काम नहीं कर सकते। पता होना चाहिए, बंदे नूं ठेडा लगे तो वेंदा है बंदा भी की सी, मैं काहदे विच वजिया। तुसीं पढ़ो, उहदे च तुहाडी तुसीं महसूस करोगे भी असी एडा वड्डा अपना घाण करवाया, फिर भी असी अकल नहीं सीखी इतिहास को। उही साडा हाल, उही औगण, उही बातां, उही चस्के। गुरु नानक महाराज ने एक बात लिखी, जिहड़ा घालना नाल असी राज लिया साडे बजुर्गां ने कमाया, वो किवें ऐश प्रस्ती दे विच धुएं वांगू उड़ गया, निजी स्वार्थां दी भेटा चढ़ गया, भरावां ने भरावां दे गल कट्टे। अज कोई वखरी हालत ते नहीं ना साडी। गुरु नानक महाराज का वचन याद करो, दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम ना होई। दुख तुहाडे लई दारू बन सकता है जीवन के अंदर, ते सुख बीमारी ते रोग पैदा कर सकता है, सानू हड हरामी बना सकता है।
सुख सहूलतां इकट्ठियां करना माड़ी बात नहीं, पर यह भुल जाना भी किधरे ये सुख साडे भविख नूं नरक ना बना देवे, ये भी ध्यान रखना साडे लई बड़ा जरूरी है। इन्हां चीज़ां नूं संभल के वरतना। महाराज कहते इस गृह में शरीर रूपी घर च कोई जागदा होवे, ज्ञान इंद्रे च परिवार च साबत वस्तु अपनी लहै, वो अपनी साबत मुकम्मल वस्तु नूं इकट्ठियां कर सकदा है। पर सुते हुए ने सारे परिवार के जी, असी प्रचारक सुते, उधरों जथेदार सुता है, उधरों कौम के आगू सुते ने, घर का कौन ख्याल रखे जी, घर नूं बचाए कौन। मैनू एक गल बड़ी टुंबदी है, जदों सरदार बहादुर हरी सिंह नलूए का जीवन पढ़ते हैं, वो अंतिम पल जिस वेले उन्हों बीमार सी, वो अखीर के उत्ते जदों अखीरली जंग जमरौद की हुई, बीमार सी, टाइफाइड सी, उस उठ नहीं सी सकता। डॉक्टर वैदा सलाह दी कि सरदार साहब तुसी उठना नहीं, क्योंकि तुहाडी हालत इन्नी नाजुक है, तुसी अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। वो फिर भी लड़िया और जिस वेले उन्होंने जख्मी होए नूं वापस लिया, एक तो टाइफाइड से, एक जख्म सी, गोली लगी सी, वापस लिया। आखिरी साहां दे उत्ते सरदार ने एक गल अपने चहेतियां नूं, नज़दीकियां नूं आखी, कहण लग्या जिन्ना चिर लाहौर दरबार तो होर फौज इत्थे पहुंच नहीं ना जाती जमरौद विच, मेरे मरे की खबर तुसी जमरौद के किले के बरूआं तो बाहर नहीं कढ़नी, इनू इत्थे ही दब छड्डना है। जदों लाहौर तो फौज आई फिर खबर बाहर कढ़नी है भी सरदार नलूआ चलाना कर गया, मैं नहीं चाहता। और एक बड़ी कमाल की बात लिखते हैं विद्वान जान भी उन्हें इस करके उहदा इन्ना प्रभाव सी, जदों ये खबर जमरौद तो बाहर आई ना किले तो भी सरदार नलूआ चल वसिया, किसी यकीन ना किया, खास तौर पर वो जहादी जिहड़े काबल तो आए सन, उन्होंने यकीन ना किया कि ये नहीं हो सकता। सरदार नलूआ इस दुनिया तो तुर गया, ਉਹਦੇ जान तो बाद ਉਹਦੀ लाश पई है जमरौद के किले च, उन्हां दे अंदर अजे भी डर है। घर दे राखे जे प्राण त्याग भी जाण ना, उन्हां दीयां कमाईआं दा इन्ना असर हुंदा है भी उस घर वाल कोई झाकण की कोशिश नहीं करता। असीं तां जिउंदे तुरे फिरदे हैं, फिर भी साडा घर लुट्टीदा है रोज़। कदे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी लुट्टी दी है, कदे असी राजनीतिक तौर पर मारी दे हैं, कदे असी आर्थिक तौर पर, तो हुण असी आपे ही लुटना, अपने आप को लुटाउणा शुरू कर दिता है। जिहड़ा मर्जी आके चादर विछा के डॉलर इकट्ठे करके लै जाए, असी बने वेखते रहते हैं। तो अपनी रिश्तेदारी च कोई गरीब होवे ना, उसकी मदद नहीं असी करते, इन्ना शरीका है साडे अंदर। तो बाबियां दे डेरे असी ऐन मजबूत ते पक्के कीते, साडे गुर भाइयों को बड़ा गुस्सा लगता है इस गल का भी बाबियां बारे क्यों कहते, कहिए क्यों ना, पंजाब रुड़ गया, डेरे पक्के हो गए, गुरुद्वारियां च बहन नूं राजी कोई नहीं। भला असीं किहदे नाल जुड़े होए, किहदे नाल जुड़े होए, असीं डेरे नाल ही जुड़े ना, बंदे नाल ही जुड़े ना। ये सानू अपनी होनी दे कारण आप लभणे पैणगे। इस गृह में कोई जागत रहे, साबत वस्तु अपनी लहै। हजूर कहते सगल सहेली अपने रस माती, सारे ज्ञान इंद्रे अपने चस्कियां च मस्त ने। गृह अपने की खबर ना जाती, अपने शरीर हिरदे रूपी घर की खबर नहीं जानी, सार नहीं लई भी असी लुटी दे जाते हैं। मुसनहार लुटन वाले, पंच बटवारे, पंज चोर, काम आदਿਕ विकार ने, सोने नगर परे ठग हारे। शरीर रूपी नगर सुइयां पिया, ठगण वाले आउंदे ने, ठग के लै जाते हैं। सुइयां पिया है घर, कोई राखी करन वाला नहीं, कोई हाँ का नारा मारन वाला नहीं कि असी लुटे जा रहे। उनते राखै बाप ना माई, उनते राखै मीत ना भाई, दरब सियाणप ना होए रहते, साध संग दुष्ट वस होते। कहने लगे कोई माँ बाप भैन भरा दोस्त मित्र, कोई धन दौलत खर्चिया भी इन्हू बचाया नहीं जा सकता। यदा एको ही तरीका है, असी दौलत खर्च के बचाना चाहते हैं भी महाराज पैसा जिन्ना मर्जी ले लो पर साडी रखिया कर लो। गुरु कहते मैं तैनू आखदा भी जाग, तेरे जागण च ही तेरी रखिया। दरब सियाणप ना होए रहते, साध संग होए दुष्ट वस होते। गुरु की संगत विच बह के अंदर गुरु के ज्ञान नूं वसाउणा, जाग पैना अंदरों, ताइयों ये पंज दुष्ट वस हो जाते हैं, ताइयों ये काबू च आउंदे ने, चोर फड़े जाते हैं। कर किरपा मोहे सारंग पाण, संतन धूर सर्ब निधान,
साबत पूंजी सतगुर संग नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। बेनती की अखीरले बंद च गुरु अर्जन साहब कहते वाहिगुरू जी कृपा करो अपने प्यारियां की संगत, गुरमुखां की संगत, गुणां की संगत निमरता नाल कर सकां, ये दात बख्शो। मेरी पूंजी गुणां की साबित रह जाए, मैं अपने गुण अपने जीवन के संभाल सकां, ये खराब ना हो, गल ना जान, खत्म ना हो मेरे अंदरों। ये दात मैनूं बख्शो। नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग, सो जागै जिस प्रभ कृपाल। ये पूंजी साबित धन माल। हजूर आखदे ओहो ही जागदा है जिहदे उत्ते वाहिगुरू किरपावान हुंदा है। भाव किरपावान होया असीं जाग गए, क्योंकि सानूं गुरु दा सुनेहा जगाउंदा है। अलार्म वज रिहा बाणी दा, जागना असीं है, इहनूं सुनना है। सो जागै जिस प्रभ कृपाल। ये पूंजी साबित धन माल। जाग गए सतगुरु आखदे ने ये पूंजी, ये धन, ये साबित रह गया, बच गया लुटण तो, चोरां दे हत्थों ये सेव हो गया। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज कृपा करन, असीं गुरबाणी की आवाज़ उत्ते अपने मन को जगा सकीए। होईयां भुलां चुकां दी खिमा गुरु ग्रंथ साहब महाराज बख्शण। सबना दा धन्नवाद। फतेह सांझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।